Hello viewers, I am Deepti. Today I am going to solve section B Physics ICSE class 10 KISA paper for the year 2026. Now question number 4 part 1 is this pulley you can see. Name the type of pulley system shown. This is the movable pulley, and to change the direction of effort we have used a single fixed pulley also. The name of type of pulley system is single movable pulley. Now what is the velocity ratio of this system? As you know, the velocity ratio of single movable pulley is 2 because load is divided in these two segments. As you can see, 2T are there. Now if the efficiency is 80%, now efficiency is equal to MA upon VR. It means efficiency is 80%, 80 upon 100. MA we don't know, but velocity ratio we know this is equal to 2. So MA is equal to 80 into 2 upon 100. It means 160 upon 100. It means 1.6. It is less than 2. It means our answer is correct. So now calculate the effort required to lift a load is given in the question as 400 Newton. Now MA is equal to load upon effort. So we have to tell the effort. So effort is equal to load upon MA. So effort is equal to load is given as 400 Newton. Upon MA we have calculated 1.6. For calculation decimal को हम हटा सकते हैं. 4000 upon 16. This is 1000 upon 416. So 250. So 250 जो यूनिट यूज हुआ है 250. The 250 Newton is our answer for C part. Now second is a ball of mass 50 gram is thrown vertically upward with a velocity of 20 meter per second. Velocity is given. Mass is given as 50 gram. So 50 upon 1000 because SI unit is kg. Now calculate the maximum height attained. तो मैक्सिमम हाइट अटेन इज इक्वल टू हम इसको दूसरे फॉर्मूले से कर सकते हैं हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू एम जी एच. एम एम कैंसिल हो जाएगा. एच निकालना है तो एच इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन 2 ऑलरेडी और नीचे जी भी आ जाएगा. v is 20 into 20. 2 into the value of g is given in the question as 10. So 2 into 10, 20. So 20 meter is the maximum height attained by the object जो भी बॉल आपको दी है. Now for this is A part, maximum height. Now next is calculate the potential energy at the highest point. So potential energy is equal to जितना kinetic energy ने दिया है वही होगा. यहाँ पर mgs ले लेते हैं. m is 50 upon 1000, g is 10 and h we have calculated. So 0 0 0 0 and 0 0. It means 5 into 2 10. Potential energy unit is joule. So 10 joule is our potential energy. For C part, at what height will its kinetic energy be equal to its potential energy? अब kinetic और potential energy equal होनी है. It means मान लेते हैं हम दोनों equal है, या फिर हम ये मान लेते हैं double of potential energy हमने ले लिया और वो कितने के equal है. यहाँ पर आपने देखा है 10 जूल के equal है. तो it means potential energy half होगी, तभी तो kinetic energy भी उसी के बराबर होगी. तो it means half और into यहाँ पे 10 है. अब potential energy का formula mgh is equal to 5. अब m कितना है 50 अपॉन 1000 इंटू g की वैल्यू है 10 इंटू h हमने निकालना है इज इक्वल टू 5. सो h इज इक्वल टू 5000 अपॉन 500. इट मीन्स 10 मीटर. सो 10 मीटर इज द हाइट. जहां पर दोनों मतलब मिड पॉइंट ही समझ लो कि 20 मीटर है तो टोटल एनर्जी है और फिर दोनों इक्वल इक्वल होगा तो 10 मीटर पे पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी मिडवे में ही बिल्कुल इक्वल आ रहे हैं. So now coming to third part, a uniform meter rule of weight 100 gf. 100 gf is pivoted at its center. तो सेंटर पे ही pivoted है. 200 gf weight is suspended at 10 centimeter. So it is 0. 10 centimeter पे 200 gf weight suspended है. Now in which direction will the rule tilt? अगर इस तरफ से ये बीच में है और यहाँ पर ये आपने वेट लगा दिया, किसी भी पे वेट आप इस तरफ लगाओगे तो ये ऊपर की तरफ जाएगा यानी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन आएगा. तो इन विच डायरेक्शन विल द रूल टिल्ट? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन यू कैन राइट और यू कैन राइट इन द यहाँ से ऊपर की तरफ जा रहा है. इट मीन्स ये हो गया हमारा राइट हैंड से लेफ्ट की तरफ जाना. तो इट मीन्स लेफ्ट साइड में टिल्ट करेगा. नाउ इन बी पार्ट, Where should be 150 gf weight be suspended to balance the rule? तो ऑब्वियसली यही साइड ऊपर उठ रही तो हम इसी साइड में लगाएंगे.
बट हमें एग्जैक्ट डिस्टेंस नहीं पता, तो हम अभी के लिए एज्यूम कर लेते हैं कि 150 GF हमने कहीं सस्पेंड किया है, जो कि डिस्टेंस हम d ही ले लेते हैं। बट उसको बैलेंस करने के लिए टू बैलेंस द रूल, तो बैलेंस द रूल मीन्स हमारा एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट शुड बी इक्वल टू क्लॉकवाइज मोमेंट, दोनों सेम आने चाहिए। तो अब इस केस में ये जो आ रहा है नीचे की तरफ था ये एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट, इट मीन्स आपके पास इसकी वैल्यू कितनी है, ये मिड पॉइंट उसने स्टार्टिंग में दिया 50 है, तो 50 माइनस 10 इंटू इस यहाँ पर आपके पास वैल्यू है 200। अब यहाँ आपको वैल्यू तो पता है 150 पर डिस्टेंस नहीं पता, तो हम डिस्टेंस लेंगे, इट मीन्स 40 इंटू 200 डिवाइडेड बाय 150 इज द डिस्टेंस। कितना आ रहा है 540 53, इट इज 44 16 160 डिवाइडेड बाय 3, तो 160 डिवाइडेड बाय 3 की वैल्यू को आप कैलकुलेट करोगे तो इट इज 53.3 सेंटीमीटर। अब 53.3 सेंटीमीटर कहाँ से, फलक्रम से, फलक्रम से 53.3 सेंटीमीटर कहाँ जाएगा, इट मीन्स ये 50 प्लस 53.3 यानी कि 103.3 सेंटीमीटर पे जाके बैलेंस कर रहा है, जबकि हमारा मीटर स्केल होता है कितना, यूनिफॉर्म मीटर 0 से 100 तक ही पॉसिबल होता है। तो हमें क्या बताना है, but where should be 150 GF suspended, so it is not possible, we will write not possible to balance this rule। now calculate the resultant moment if 150 GF weight is removed। अगर हमने इस वाले वेट को जो अभी हमने लगाया है 150 GF को, इसको रिमूव कर दिया तो रिजल्टेंट मोमेंट कितना रह गया, ये एंटी क्लॉकवाइज वाला ही रह गया, इट मींस आपके पास, तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पे, रिजल्टेंट इज इक्वल टू, अगर हमने उस वाले को रिमूव कर देंगे 150 GF वाले को, तो कितना आया यहाँ पर 50 माइनस 10 इट मीन्स 40 इंटू 200 यानी कि 8000, और यूनिट ध्यान से लगाना है, GF है और सेंटीमीटर, तो 8000 GF सेंटीमीटर, और डायरेक्शन है इसकी केस में एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट, ये हमने दिखाना है। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 5। इन क्वेश्चन नंबर 5 an object is placed at a distance of 30 सेंटीमीटर, तो u इज इक्वल टू माइनस 30 सेंटीमीटर, कोई भी लेंस हो u नेगेटिव ही रहेगा, फ्रॉम ए कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर, बट क्योंकि कॉन्वेक्स है तो प्लस आ जाएगा। नाउ कैलकुलेट द इमेज डिस्टेंस 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f, 1/v हमने कैलकुलेट करना है, 1/f प्लस 1/u, 1/f इज 20 प्लस 1/u इज 30, और वो भी माइनस का, इट मीन्स 60, 23 हो गया, माइनस यहाँ पर 2 हो गया, इट मीन्स 1/60, 1/v इज इक्वल टू 1/60, इट मीन्स v की वैल्यू 60 सेंटीमीटर आ रही है। नाउ कैलकुलेट द इमेज डिस्टेंस, ये आ गया आपके पास, फाइंड द मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू v अपॉन u, v इज 60 upon u is minus 30 यानी magnification is -2। if the object is moved 15 centimeter toward the lens, what will be the nature of the new image। अब अगर आप इसको ध्यान से थोड़ा सा भी ड्रॉ, रफ डायग्राम भी ड्रॉ करके देखोगे तो इसकी फोकल लेंथ कितनी हमें क्वेश्चन में गिवन है 20, और अभी हमारा इमेज डिस्टेंस कितना आया था इसका, सॉरी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना था इनिशियली 30, मींस 30 मींस ये यहाँ पर था पहले ऑब्जेक्ट, यानी कि f और 2f के बीच में था, तो हमारी इमेज बन रही थी। बट अब दे आर सेइंग द ऑब्जेक्ट इज मूव 15 सेंटीमीटर टुवर्ड द लेंस, तो 15 सेंटीमीटर यानी कि 30 से 15 इधर लाए, इट मींस 15 सेंटीमीटर पे आ जाएगा, तो 15 विल बी इन बिटवीन o एंड f। नाउ द ऑब्जेक्ट इज इन बिटवीन o एंड फोकस, सो आपका जो इमेज है उसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या हो जाएंगी, वर्चुअल बन जाएगा, लास्ट केस हो जाएगा ना, वर्चुअल, इरेक्ट एंड हाईली मैग्निफाइड, दिस विल बी द characteristic of the image। now second part, define refractive index of object, refractive index in terms of speed of light, so mu is equal to the ratio of speed of light upon velocity of light in that medium, speed of light and divided by v means velocity of that जो भी दूसरा मीडियम हमने लिया है for a pair of media, so mu is equal to c by v। a coin at the bottom of a beaker containing water, mu is equal to 4/3 appears to be raised by 3 सेंटीमीटर, इसमें डायरेक्टली शिफ्ट ही दिया हुआ है, ये क्वेश्चन बोर्ड के पेपर का ही है और आपके बुक में एज एग्जांपल भी दिया हुआ है, 3 सेंटीमीटर का शिफ्ट है, तो वी कैन डायरेक्टली अप्लाई शिफ्ट फॉर्मूला, रियल डेप्थ 1 माइनस 1/μ, तो रियल डेप्थ आपके पास हमने निकालनी है, शिफ्ट का आंसर 3 है, रियल डेप्थ 1 माइनस 1/μ इज 4/3, so it means it will become 1 minus 3/4,
It means 4 minus 3 means 1/4. Real depth is equal to 3. तो यहाँ से रियल डेप्थ की वैल्यू कितनी आ गई? 3 into 4. It means 12 centimeter is the answer in this case. Now refer to the diagram given below. Ray of light PQ is incident normally on the face AB of the glass prism having angles आपको 45, 90, 45 यानी कि राइट एंगल्ड आइसोसेलेस प्रिज्म दिया है, तो आपको इसका फिगर रे डायग्राम कंप्लीट करना है. So this is 90, this is 45, this is 45. Copy and complete the path of ray until it emerges from the prism. As it is coming and incident on the surface making an angle of 90 degree with the surface, यानी कि I 0 हो गया, तो कोई भी I 0 है तो R 0 होगा, यानी कि विदाउट डेविएशन आगे चले जाएगा. जब इस हाइपोटेन्यूज पे स्ट्राइक करेगा तो इट विल मेक एन एंगल ऑफ 45 डिग्री एंड वी नो दैट 45 डिग्री इज ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल अनलेस मेंशन ना किया हो क्वेश्चन में. अगर मेंशन है तो 60 तक भी दे सकते हैं, बट मेंशन नहीं है तो हम 42 लेंगे. तो इट मींस हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल है, तो TIR विल हैपन. So when TIR will happen, it will go inside here, like making an angle of 45 again. So again it will go undivided from this base side. Calculate the angle of deviation. Angle of deviation is 90 degree. यहाँ से अगर आप देखेंगे ये रे आपका ऐसे आ रहा है, ऐसे जाके 45 plus 45 यानी कि angle of deviation delta is equal to 90 degree. Now name the device where such an action of prism is used. It is used in periscope. Question number 6. The displacement time graph for two sounds A and B are shown. As you can see, the amplitude of A is more and the number of cycles of B are more. So which wave has higher pitch? So in first part, higher pitch means pitch is related with, pitch is directly proportional to, so frequency. So frequency is higher with B. So B will have higher pitch. Now B part is which wave is louder, which has more amplitude, a maximum displacement from the mean position. So A has a louder sound because uska amplitude is more, because we have to write that loudness is directly proportional to amplitude square. If the time period of A wave is, time period is given as 0.02 second, what is its frequency? So frequency is equal to 1 upon time period. 1 upon 0.02, decimal को cancel करते हैं, 100 upon 2. It means 50 hertz is the frequency. Now why does the smoke from a fire look white? So smoke के लिए क्या relation दे सकते हैं हम? जब भी molecules का size is greater than the wavelength, molecules का size is greater than the wavelength of light, तो it means वो सारे colors को equally scatter करेगा. It will scatter all the colors equally, और सबको करने के बाद जब सबको करेगा तो it means उसका कलर क्या हो जाएगा? व्हाइट हो जाएगा. जब तक मॉलिक्यूल्स का साइज वेवलेंथ से छोटा रहता है तब तक हमारा इंटेंसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा पावर 4 अप्लाई होता है, बट इस केस में नहीं होगा क्योंकि ग्रेटर हमारे पास वेवलेंथ ज्यादा है, मॉलिक्यूल्स का साइज बड़ा है इसीलिए. Now ratio of amplitude of two waves is 3:5. Amplitude of one and amplitude of two is equal to 3:5. What is the ratio of the intensity, or you can say loudness? So loudness का ratio L1 upon L2 is equal to amplitude का square होता है, तो amplitude square it means 3 का square और 5 का square, तो 9:25 is the answer for this part. Now a wire stretched between two supports is plugged. दो हैं और उसके बीच में वायर को हमने प्लग किया, तो आपको पता है कि इस तरह की वेव आ जाती है आपके पास. Name the type of vibrations produced. These are transverse vibrations. ट्रांसवर्स वाइब्रेशंस है. प्रिंसिपल नोट आता है जब हम पहली बारी में करते हैं प्लग, तो हमारे पास प्रिंसिपल नोट आता है वाइब्रेशंस ऑफ डेफिनेट नेचुरल फ्रीक्वेंसी. ट्रांसवर्स वाइब्रेशन ऑफ definite natural frequency will be produced. Now name the type of vibrations produced. इसमें हम ले सकते हैं, एक तो हमने यही ले लिया, और दूसरा अगर वहां पर मीडियम की प्रेजेंस है तो इसमें हम डैम्प्ड का आंसर भी करेक्ट ले सकते हैं.
नेक्स्ट इज रेजोनेंस इज स्पेशल केस ऑफ फोर्स वाइब्रेशन, तो ये तो आपको पता ही है, एक्सप्लेन बाय, बिकॉज इट इज स्पेशल केस ऑफ फोर्स वाइब्रेशन मींस हम बाहर से पीरियोडिक फोर्स दे रहे हैं, तो ये हमेशा तो नहीं होगा कि नेचुरल फ्रीक्वेंसी उसके इक्वल हो जाएगी. सो वेन एवर द नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ द बॉडी इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ द वाइब्रेशन ऑफ द पीरियोडिक फोर्स, ओनली देन रेजोनेंस विल हैपन एंड इट विल इंक्रीज एम्पलीट्यूड ऑफ द बॉडी, इट विल वाइब्रेट विद द इंक्रीज्ड एम्पलीट्यूड. तो ये आपने रेजोनेंस की डेफिनेशन और इस लाइन को थोड़ा सा मिक्स करके लिखना है. Now next is the tuning fork of frequency. Frequency is given as 256 Hertz. Resonate with a sonometer wire of length is given as 20 centimeter. If the length of the wire is increased to from 22, it will increase to 40 centimeter, keeping tension constant. Will resonance occur? अगर इस पे इतनी लेंथ पे पहले रेजोनेंस हो रही है तो इसकी 1/3 भी नहीं है, ये 3 टाइम्स भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो अगर फ्रीक्वेंसी के साथ मैच नहीं करेगी तो नहीं होगा, नेचुरल फ्रीक्वेंसी के साथ मैच नहीं करेगा, तो वी जस्ट हैव टू राइट नो रेजोनेंस विल हैपन, नो रेजोनेंस विल हैपन इन दिस केस, क्योंकि इनकी फ्रीक्वेंसी मैच ही नहीं करेगी. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 इज फ्रॉम इलेक्ट्रिसिटी. A battery of electromotive force EMF is given as 12 volt and internal resistance R is given as 2 ohm, is connected in series with two resistors. R1 is equal to 4, R2 is equal to 6 ohm. Draw the circuit. तो एक हो गया, दो हो गया, और आपने इसके साथ बैटरी ले ली. बैटरी में ही हम अगर इस तरह से शो कर देंगे तो बैटरी का आपके पास EMF है 12 वोल्ट और इंटरनल रेजिस्टेंस है 2 ओम, वन रेजिस्टर 4 एंड अनदर रेजिस्टर 6 ओम. नाउ कैलकुलेट द करंट इन द सर्किट. सो पहले हमें टोटल रेजिस्टेंस निकालना पड़ेगा. टोटल रेजिस्टेंस इज 4 + 6, ऑल आर इन सीरीज, सो इट इज 12 ओम. नाउ करंट V is equal to IR, we all know. So हमें यहाँ पर क्या EMF वाला फॉर्मूला लगाना है I, लेकिन उसमें हम टोटल R ले रहे हैं, बस इतना ही फर्क है. तो I is equal to EMF is 12 upon total R is 12, so it is 1 ampere. So current will be 1 ampere. Calculate the terminal voltage of the battery. So now we know that EMF is equal to terminal voltage plus potential drop. तो हमें terminal voltage calculate करना है, यानी EMF में से potential drop को minus कर देंगे. तो EMF is 12 minus potential drop मतलब जो internal resistance में हो रहा है, तो उसकी वैल्यू होती है ये. तो I और small r. So 12 और माइनस कितना है, करंट हमें निकाला 1 है और R is 2, तो it means 10. So 10 is the terminal voltage of the battery. Now next is electric geyser is rated, power is given as 2000 watt means kilowatt and voltage is 200 volt. Now calculate the monthly cost of using it for 30 minutes daily. तो time is given as 30 minutes हम ले नहीं सकते हैं, we have to convert it into hours. तो 30/60 means half hour and at 5 unit. तो पहले हम निकाल लेंगे कि एनर्जी कितना आ जाएगा. वैसे तो P into T हम लेते हैं, तो P is 2000 एंड T इज हाफ, लेकिन हमें किलो में लेना है, तो पावर को हमें किलो, बिकॉज हम आपको पता है ना कि किलो वॉट आवर इज द कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो फॉर दैट पावर शुड बी इन किलो वॉट. तो किलो के लिए 1000 से डिवाइड करेंगे एंड टाइम आवर्स में है, लेकिन वो एक दिन का है और हमें 30 मिनट्स डेली के लिए निकाला है, पूरे मंथ के लिए, तो मंथ में 30 हो जाएगा. तो जीरोस तो कैंसिल हो गई, 2 भी कैंसिल हो गया, यानी कि 30 किलो वॉट आवर कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एट 5. तो टोटल बिल मीन्स कॉस्ट आपका आ जाएगा इसमें 30 into 5 per unit, it means 150 rupees. 150 will be your answer. Why is the earth pin thicker and longer? So why it is thicker? मोटी क्यों बनाई जाती है? To reduce the resistance so that it can carry large current safely to the ground. तो thicker का रीजन हो जाएगा to reduce resistance. Basically हमने ये लिखना है so that it can carry large current. Now longer to ensure earth connection made first and broken last also. सबसे पहले बनेगा भी और ब्रेक भी लास्ट में होगा, तो अपनी ही सेफ्टी के लिए हमें इसे thicker और longer रखना है. Draw a circuit diagram to show how a staircase lamp is controlled by two switches. तो dual control switch है, सर्किट आपकी बुक में इजीली बना हुआ है, उसको कॉपी करो, प्रैक्टिस करो. State 2 advantages of connecting appliances in parallel. All appliances receive the same voltage
from the means. And next is switching off of one does not affect the brightness or voltage of the other because all are getting same potential difference. So ये आपको theory type questions भी physics के लिए दोनों तरह के questions आपको करने हैं, अच्छा hold बनाना है, only then you will be able to score good marks. Now question number 8, a piece of ice 50 gram. So ice है, mass is given as 50 gram at minus 10 degrees Celsius. Temperature is minus 10 degrees Celsius for ice. Is heated to convert it into water at or water का temperature is given as 20 degrees Celsius. Now calculate the total heat energy supplied. और बाकी सब कुछ हमें दिया। तो ये हमारा ग्राफ का कौन सा फेज आएगा, अगर हम ग्राफ ड्रॉ करके देखेंगे तो ये वाला फेज है जिसमें -10 से 0 पे आएगा, 0 से रहेगा और फिर 0 से होकर 20 तक जाएगा। तो हमें ये और ये तीनों फेज लेना है। तो Q इज इक्वल टू पहले MC डेल्टा T प्लस ML और फिर लास्ट वाला MC डेल्टा T वाटर वाला भी हमें कंसिडर करना है। तो M तो हमारे पास आइस है, उसी को हम मेल्ट कर रहे हैं, तो M को वी कैन टेक कॉमन। तो M हमने इसमें कॉमन ले लिया। M अगर हम कॉमन ले लेंगे तो आपके पास मास कितना दिया 50 ग्राम, तो 50 कॉमन ले लिया। फर्स्ट केस में C फॉर आइस वी हैव टू टेक, तो 2.1 हो गया। चेंज इन टेम्परेचर 10 है, इट मींस 0 माइनस -10 10 आ जाएगा। यहाँ से M कॉमन ले लिया। L की वैल्यू, ऑल वैल्यूज आर गिवन इन द क्वेश्चन, आपको कहीं कुछ करने की जरूरत नहीं है। इट इज गिवन एज 336 एंड देन लास्ट हमारा C वाटर वाला आ जाएगा, इट मींस 4.2 आया और टेम्परेचर हमें 20 - 0 यानी कि 20 शो करना है। तो एक स्टेप मैं छोड़ रही हूँ यहाँ पर, 50 हो गया, इट मींस ये 21 है, 336 है प्लस 4 84 है। यहाँ पर ये वाली चीज आपके पास आ जाएगी। इन दोनों को प्लस करेंगे तो यू विल गेट 441 एंड बाहर आपके पास 50 ऑलरेडी है, यू विल गेट मल्टीप्लाइड, तो 22050 जूल दिस इज आंसर और 22.05 किलो जूल। यू कैन ऑल्सो राइट इट लाइक दिस। Now differentiate between heat capacity and specific heat capacity. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम सिंबल लेते हैं हीट कैपेसिटी का, C डैश ले लो और C ले लिया हीट कैपेसिटी के लिए। नाउ इसका सबसे मेन आएगा आपके पास कि किस पे डिपेंड कर रही है, पूरी हीट एनर्जी रिक्वायर्ड को पूरी डेफिनेशन आपने सेम लिखनी है। इसमें फॉर द एंटायर बॉडी हीट प्रोवाइडेड और इसमें यह हो जाएगा पर या यूनिट मास आप लेंगे। तो इसका मतलब इसमें हम क्या ले रहे हैं, जूल पर केजी और पर केल्विन इसका ऐसा यूनिट हो जाएगा, जबकि यहाँ पर है हमारे पास ऐसा यूनिट जूल पर केल्विन, क्योंकि ये एंटायर बॉडी का मास हम इसमें कंसीडर करते हैं। बाकी और डिफरेंसेस भी हैं, आप अपने बुक से भी देख सकते हैं, ये मैंने बहुत बार पहले भी क्लियर किए हुए हैं। वायर बर्न्स कॉज्ड बाय स्टीम मोर सीवियर देन, तो इट केस में कितनी एक्स्ट्रा एनर्जी उनके पास 2260 किलो जूल पर केजी एनर्जी उनके पास एक्स्ट्रा होती है। यहाँ तो 2 पॉइंट ऐसे लिख दो, किलो जूल लिख दिया पर केजी एज कम्पेयर टू। आपने मेन कीवर्ड इसका है लेटेंट, हाई लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, हाई लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, तभी उसकी वजह से स्टीम के जो बर्न्स होंगे वो ज्यादा होंगे, क्योंकि उसके पास इतनी स्टीम हैज दिस मच एक्स्ट्रा एनर्जी कंपेयर टू वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस। इतना यू हैव टू राइट। Now coming to third part, again numerical, 40 ग्राम of water, यहाँ पर water है आपके पास, mass is given as 40 ग्राम at 60 डिग्री, तो temperature is given as 60 डिग्री सेल्सियस is poured into कैलोरीमीटर। कैलोरीमीटर का क्योंकि कॉपर का बना है तो कैलोरीमीटर का mass is given as 50 ग्राम and temperature is given as 20 डिग्री सेल्सियस। The final temperature T is equal to 50 डिग्री सेल्सियस। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ द कैलोरीमीटर C हमने बताना है और वाटर का 4200 है। अब इसमें ग्राम में भी है और पर केजी में भी है, तो आपकी मर्जी, आप किसी एक को इसमें से कन्वर्ट करोगे, सेम यूनिट आने जरूरी है। तो हीट एनर्जी गिवन बाय वाटर, क्योंकि वाटर हाई टेम्परेचर पे है, तो गिवन बाय वाटर इज इक्वल टू हीट एनर्जी टेकन बाय कैलोरीमीटर। तो इतना आपको लिखना है अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री, MC डेल्टा T। तो अब इसमें M है, C है, डेल्टा T के लिए हॉट बॉडी है, तो हम पहले हॉट बॉडी माइनस फाइनल टेम्परेचर लेंगे, और उस तरफ भी M है, C है, लेकिन पहले फाइनल टेम्परेचर माइनस कोल्ड बॉडी का टेम्परेचर आएगा। ये चीज गलती नहीं करनी है आपको। यहाँ पर मास वाटर का लेना है, स्पेसिफिक वाटर की लेनी है, यहाँ पर कैलोरीमीटर का लेना है, कैलोरीमीटर का लेना है। तो आपके पास वैल्यूज है ही हैं, किसी एक को आपको चेंज करना है। तो 40 ले लिया आपने, वाटर का आपके पास 4200 जूल पर केजी में दिया है, तो हम उसी को ग्राम में कन्वर्ट कर लेते हैं, 4.2 आ जाएगा। नेक्स्ट इज टेम्परेचर, टेम्परेचर इज 60
minus finer यानी कि 50. Here mass is given as again 50. C we have to calculate and temperature is final is 50 minus 20. तो 50 minus 20. अब C हमने कैलकुलेट करना है, बाकी सब चीजें इस तरफ चले जाएंगी, आपकी कैलकुलेशन पार्ट इस तरफ लेफ्ट में जाएगा, तो you will get the answer as 1680. इस तरफ का आंसर है 1680 इज इक्वल टू पहले 50 इंटू 30 सी आ जाएगा इंटू सी, फिर सी की वैल्यू लेंगे तो 1680 अपॉन 5 इंटू 3 1500. ये आपने सॉल्व किया तो इट मीन्स 5 इंटू 3 1500. नाउ इट इज 28/25 एंड योर आंसर विल बी 1.120 जूल पर ग्राम पर Kelvin for calorimeter. This you have to write. With this question 8 is also over. Now coming to question number 9. A radioactive nucleus emits a beta particle. Does its mass number change? No. क्योंकि beta particle कहाँ से emit होता है? Beta particle is emitted from the nucleus only. तो कब होता है वो? emitting नहीं हो, मतलब one neutron is getting converted into proton and साथ में beta particle emit हो जाता है. तो अगर एक न्यूट्रॉन का नंबर वहां पर डिक्रीज हो रहा है तो एक प्रोटॉन इंक्रीज हो रहा है, तो नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स तो सेम रह रहे हैं, तो नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स सेम है, इसलिए नो चेंज इन द मास नंबर. दिस यू हैव टू राइट देयर कि मास नंबर में चेंज नहीं आएगा. विच पार्ट ऑफ द एटम एमिट्स रेडियोएक्टिव रेडिएशन? तो इसमें ये सारी रेडियोएक्टिव रेडिएशन पूरा इसके साथ न्यूक्लियस के साथ जुड़ा हुआ है, क्योंकि ये रेडियोएक्टिविटी फिजिक्स में टॉपिक ही से रखा गया, क्योंकि ये सारी चीजें न्यूक्लियस से एमिट हो रही है. अगर ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन होते तो फिर केमिस्ट्री होती. Why are lead boxes used to store radioactive material? Because lead यानी Pb has क्या है उसके पास? हाई डेंसिटी है. हम यूज करते हैं उसको इसीलिए क्योंकि वो सेफ हो जाता है हमारे लिए, तो हाई डेंसिटी है एंड हाई ही एटॉमिक नंबर भी है. दिस यू हैव टू राइट, हाई atomic number and high density. That is why it is an, हमारा main reason है, that is why it is an excellent absorber of radioactive radiations. So इसीलिए हमारे लिए सेफ हो जाएगा, शील्डिंग अवर सराउंडिंग. तो रेडियोएक्टिव रेडिएशन को गुड एब्जॉर्बर है, इसलिए लिखा हमने, ये रीजन देने में. नाउ कंप्लीट द फॉलोइंग न्यूक्लियर रिएक्शन. सेकेंड पार्ट में यूरेनियम 92 238 वाला यूरेनियम का आइसोटोप यूज किया जा रहा है. तो थोरियम है 90 एंड 234. तो क्या एमिट हो रहा है आपके पास यहाँ पर? 92 से 90 हो रहा है, यानी ये अल्फा पार्टिकल है, तो 2He4 एटॉमिक नंबर 2 एंड मास नंबर 4 से रिड्यूस हो रहा है. नाउ नेक्स्ट इज सोडियम 11 24 एंड मैग्नीशियम 12 एंड 24. तो क्या हुआ है? 24 रह रहा है और 11 से 12 यानी मास नंबर में चेंज आया, यानी ये -1 E0 यानी ये बीटा पार्टिकल एमिट हो रहा है. तो एक में अल्फा और दूसरे में बीटा आपने शो करना है और लिखना भी है. डिफरेंशिएट बिटवीन न्यूक्लियर फिजन एंड न्यूक्लियर फ्यूजन. तो फिजन इज द स्प्लिटिंग ऑफ ए हैवी न्यूक्लियस इनटू लाइटर न्यूक्लियाई, और न्यूक्लियर फ्यूजन में उल्टा हो जाएगा, टू लाइट न्यूक्लियाई कंबाइंड टू फॉर्म अ हैवी न्यूक्लियस. थोड़ा सा आपको डेफिनेशन को लर्न करना पड़ेगा. स्टेट 1 सेफ्टी प्रिकॉशन व्हाइल एस्टैब्लिशिंग ए न्यूक्लियर पावर प्लांट. तो थिक कंक्रीट शील्डिंग वॉल्स होनी चाहिए और बैकअप कूलिंग सिस्टम जरूर होना चाहिए. नाउ नेम द मॉडरेटर यूज्ड इन न्यूक्लियर रिएक्टर. तो न्यूक्लियर रिएक्टर में बेसिकली हमें मॉडरेटर की जरूरत क्यों होती है? क्योंकि जो हम फिजन रिएक्शन करते हैं उसमें 3 न्यूट्रॉन्स हमारे हर रिएक्शन में निकलते हैं, तो 3 3 3 निकलते जाएंगे तो कितने ज्यादा हो जाएंगे. तो इट इज द नीड ऑफ द आवर टू, हमें कुछ उसमें से उनकी स्पीड को स्लो करना है, कुछ न्यूट्रॉन्स को हमें एब्जॉर्ब करना है, तो उसके लिए मॉडरेटर यूज होते हैं. तो सम ऑफ द न्यूट्रॉन्स एब्जॉर्ब बाय, कौन कर रहा है एब्जॉर्ब? कैडमियम रॉड्स कर रही है, एंड मेक देम स्लो बाय मॉडरेटर. तो मॉडरेटर का मटेरियल सिर्फ पूछा, ये मैं आपको सिर्फ बता रही हूँ. मॉडरेटर का मटेरियल होता है ग्रेफाइट या फिर हैवी वाटर, ये हम यूज करते हैं मॉडरेटर की तरह पे कैडमियम रॉड्स के साथ. सो विद दिस आई कंक्लूड माय टुडेज वीडियो. होप यू लाइक द सॉल्यूशन गिवन बाय मी. दिस पेपर विल गिव यू कंप्लीट रिवीजन ऑफ फिजिक्स बोर्ड पेपर आल्सो, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस आपको वहां पर भी सिमिलर मिल सकते हैं. थैंक यू फॉर वाचिंग टिल द एंड. कीप वाचिंग, शेयरिंग एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल. इफ यू वांट a crash course during the examination, then do tell me in the comment section. Thank you for watching till the end.